Okay, so now today we are going to have a look towards relational operators. Okay, relational operators. Okay, there are various relational operators are there. Those are less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal. Okay, these operators you can see on the screen. Okay, these are the different relational operators which we have to use in our programming language. Okay, these relational operators will help us to create the expressions, and these expressions we are using in if block, or we can say that in the loop also. Okay, just to make as a condition. Okay, these relational operators which are used for creating the expressions or conditions which we have to use in if block or in for loop or in any looping statement. Okay, हम लोग loop में भी use करते हैं, if block में भी use कर सकते हैं इनको इन operators को. Okay, so these relational operators will help us to create the expressions, okay, like conditions, okay, which we have to use in if block, looping statements, etc, etc. Okay, now how to create the expressions with the help of these operations, operators, that is relational operator. Those are like if suppose less than we have to use, that is a less than b, a less than, a less than b, a greater than b, a less than equal to b, a greater than equal to b, a equal to b, a not equal to b. Okay, in such a manner we can create the expressions or conditions, okay, with the help of these relational operators. Okay, now how these relational operators will operate, किस तरीके से वो operate होते हैं. It these relational operators, using these relational operators we have created expressions. Okay, so these expressions will get evaluated first. Okay, if you have used these expressions in if block or any looping statement, okay, so those expressions will get evaluated. Now how it will evaluated, its evaluated value either may be 0 or non-zero value. Okay, expressions evaluated value may be 0 or non-zero. That may be suppose 1. Okay. Here expression evaluated value may be 0 or non-zero. That may be suppose 1. Okay. So if that expression, if that expression evaluates to true, okay, then its value is non-zero. That may be 1. Okay. Here this 0 means false. 0 means false. Okay. 0 is nothing but false. Okay, 0 says false and 1 says true. Okay, 0 says false and 1 says true. That if these expressions, if these expressions evaluated value is 0, then that expression value is false. Okay, then that means we can say that that condition is false. Okay, because these relational operators we are making use to create some conditions. Okay, conditions को create करने के लिए हम लोग इन relational operators का use करते हैं. Okay, और उनकी उन expression की evaluated value क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो फिर 1 हो सकती है. अगर 0 है इसका मतलब उस कंडीशन की वैल्यू क्या है, वो इसका मतलब वो कंडीशन क्या है हमारी
फॉल्स है, और अगर नॉन जीरो दैट मीन्स मे बी सपोज 1 अगर है, सो दैट द वैल्यू और दैट एक्सप्रेशन दैट कंडीशन इज ट्रू। ओके, मान लो सपोज हमने इसको इन सारे एक्सप्रेशंस को इफ ब्लॉक में कंसिडर किया है। ओके, लाइक सपोज दिस if 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 like this. Okay, if we have used these expressions like this, okay, in the if block, simple if block. Okay, so how it will work? How it will work? Whenever your compiler encounters such expression, first of all that expression will get evaluated, its expression value will get evaluated. So if suppose value of a and b are like this, if suppose value of a and b are 10 and 20, okay, respectively, so just put up the values. Value of a is 10 and value of b is 20, as you can see. Okay, so 10, 20. As we all know, 10 is always less than 20, है ना? 10 is always less than 20. So that expression, that is 10 less than 20, evaluates which value? क्या वैल्यू वहां पर इवेल्युएट होके आएगी? a लेस देन 10, a लेस देन b से 0 and 1। बेटा 0 and 1 दोनों कैसे आएगी ये बता। दोनों नहीं आएगी ना, कोई भी एक ही वैल्यू आएगी। 0 और 1 नहीं बेटा, यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पर और का चांस ही नहीं। या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ओके, एंड दैट विल बी टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन और एक्सप्रेशन, दैट इज a लेस देन b। नाउ इन दिस केस इफ a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, so a less than b evaluates which value? A less than b evaluates which value? In case of a equal to 10 and b equal to 20, obviously 10 is always less than 20, that means that condition is satisfied। वहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a is less than b, हाँ है ना, क्योंकि a में 10 वैल्यू स्टोर्ड है और b में 20 वैल्यू स्टोर्ड है। सो a is less than b, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई होती है तो वैल्यू क्या आती है? ट्रू की वैल्यू। ट्रू की वैल्यू क्या है? 1। सो इट्स एक्सप्रेशन वैल्यू इवेलेट्स टू 1। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? 1 आएगा, क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a b से छोटा है ना? है कि नहीं? है ना? a की वैल्यू हमने 10 कंसिडर की और b की वैल्यू 20 कंसिडर की। वैल्यू पुटअप किया, a लेस देन b, दैट इज 10 लेस देन 20। ऑब्वियसली 10 इज ऑलवेज लेस देन 20, सो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसकी इवेल्युएटेड वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि अगर एक्सप्रेशन वैल्यू इवेल्युएटेड मे बी 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो 1 वहां पर इवेल्युएटेड वैल्यू आएगी। ओके, इन द सेम केस फॉर द सेकंड एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर a ग्रेटर देन b चेक कर रहे हैं, a greater than b check करें, that is 10 is greater than 20। yes, is that so? 10 is greater than 20? 10 is greater than 20, yes or no? No, that means that condition, that expression evaluates to false, है ना? वो false हो रही condition means a b से बड़ा नहीं है। okay, so in that case what will be the value of that expression? that is 0, है ना? 0 हो रही है ना? समझ में आ रहा है? Are you getting? हाँ, so its value, that expression value becomes 0. okay, so in place of that a greater than b, value 0 will be considered। okay, और अगर condition false है, 0 है, that means वो condition क्या होती है? false है ना? अगर expression की value 0 है, that means वो condition क्या है? false है। now here in the third expression, a less than or equal to b, a less than or equal to b. Now consider same, a equal to 10 and b equal to 20। okay, so here put up values, a is equal to 10 and b equal to 20। so 10 is less than or equal to 20, है ना? 10 is less than or equal to 20। okay, भले ही 10 b के इक्वल नहीं है, लेकिन लेस देन तो है ना? and its meaning less than, it's this symbol,
This symbol says what? Less than or equal to. लेस देन और इक्वल टू, अगर a b से छोटा है या तो फिर इक्वल है, a इज लेस देन और इक्वल टू b है क्या, वो चेक कर रहा है ना. a भले ही b से इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन तो है. ओके, सो हेंस दैट कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू. ओके, less than, here actually here it is less than or, greater than or. Okay, less than or equal to, greater than or equal to. Okay, so here if a less than or equal to b means a भले ही b से इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है, hence that condition evaluates to true. और अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी इवेल्युएटेड वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. ओके, हाँ, सो इट्स वैल्यू इज 1. Its value is 1. Okay, now in this particular example, in this expression, what will be the value? A, इस expression की value क्या आएगी? A greater than or equal to B. A greater than or equal to B. Now put up the values of A and B. A equal to 10 and B equal to 20. Okay, so 10 ना तो B से बड़ा है और ना ही B से equal है ना. 10 is neither greater than 20 nor equal to 20. So at that time condition will becomes false, है ना. 10 ना तो 20 से बड़ा है, मीन्स 10 ना तो 20 से बड़ा है ना ही इक्वल है ना. ग्रेटर देन और इक्वल, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, और बोला है हमने, है ना. लेस देन और ग्रेटर देन और बोला है, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए. ओके, अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, दैट मीन्स दैट कंडीशन इज फॉल्स. दैट मीन्स दैट कंडीशन इज फॉल्स. सो 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20. 10 is neither greater than nor equal to 20. So this condition evaluates to false, and if it is false, its evaluated value is 0. Okay, so in place of this a greater than or equal to b, compiler will evaluate that is 0. Okay, compiler क्या evaluate करेगा, 0 evaluate करेगा. Okay, that means that condition is false. That means that condition is false because 10 is neither greater than or nor equal to 20, है ना. 10 ना तो 20 से बड़ा है और ना ही 20 से इक्वल है ना. Is that clear everyone? Okay, now in the next expression a equal to b, a equal to b. Okay, remember यहाँ पर हम लोग equal to दो बार यूज कर रहे हैं, that means this is the expression. Okay, ये expression है, ये टेस्ट कंडीशन है, it will be the condition. Okay, डबल इक्वल टू साइन तभी यूज करते हैं जब हमको कंडीशन क्रिएट करना होता है. सिंगल इक्वल टू कब यूज करते हैं हम लोग, एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट, है ना. जब हम असाइन करना चाहते हैं किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में या तो फिर किसी एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल में, तभी हम लोग सिंगल इक्वल टू साइन का यूज करते हैं. डबल इक्वल टू साइन का कब यूज करते हैं हम लोग, डबल इक्वल टू साइन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एक्सप्रेशन लाइक कंडीशन. Okay, that is like this, a equal to b. Okay, so in this expression what will be the value, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पुट अप द वैल्यूज ऑफ a and b, that is 10 20. 10 is equal to 20 है क्या, 10 और 20, 10 और 20 दोनों इक्वल होते हैं क्या, नहीं, है ना. 10 और 20 दोनों इक्वल होते हैं क्या, नहीं ना. सो दैट कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, है ना. मींस ए बी के इक्वल नहीं है ना. ए बी के इक्वल नहीं, हम वही चेक कर रहे हैं कि ए बी के इक्वल है क्या. हम यहाँ पर यही चेक कर रहे हैं ए बी के इक्वल है क्या, लेकिन नहीं है. 10 is not equal to 20, so condition is false. अगर false है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. Okay, is that clear? Now here, if a not equal to b, a not equal to b means a b के बराबर नहीं है, ऐसा सही है या गलत है. Now put up the values of a and b, 10 20. 10 is not equal to 20. Yes, 10 is not equal to 20. 10 20 के बराबर नहीं है. So at that time condition is satisfied, true, है ना. अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1. एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1. Is it clear?
इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? हाँ, हाँ सर। नहीं, सब लोगों को समझ में आया क्या, वो बताओ मुझे। उज्जवल, आर यू देयर? उज्जवल ज्वाइन होके चला गया? ओके, संध्या, आर यू देयर? यस सर। ओके, डिड यू गेट दिस? यस सर। समझ में आया ना? क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर? ओके, ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे जाएंगे। ओके, रिमेंबर, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम लोग कंडीशंस क्रिएट करने में यूज करते हैं हम लोग इसका। ओके, और कंडीशंस हम लोग इफ ब्लॉक में यूज करते हैं या तो फिर लूपिंग स्टेटमेंट में यूज करते हैं, इतने ध्यान में रखना। ये कंडीशंस हम लोग कहाँ यूज करेंगे, या तो इफ ब्लॉक में या तो फिर लूपिंग स्टेटमेंट में। ओके, इज दैट क्लियर? Next. यस सर। Okay, then next, after relational operator, we have to see which operator? Bitwise operator. डिवाइस। Okay. Yes, and one more thing that you have to remember for the relational operator, that those relational operators are binary operator. Okay, those relational operators are binary operator because we are applying those relational operators on two operands. Okay, दो operands के साथ हम लोग उस relational operator को apply करते हैं दो operands के ऊपर, इसीलिए उनको हम binary operator बोलते हैं. Okay, now we have to see the bitwise operator. Now see, as name implies, bitwise. Okay, bitwise. That means you are going to apply that operator, and those operators applied on bits. Okay, applied on bits. Bits के ऊपर वो apply होता है. Now bits are nothing but in the form of zeros and ones, है ना? As we all know, bits are nothing but zeros and ones. Okay, हमारी जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को एक्चुअली हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमने जो भी लिखा हुआ है वो उसको समझ नहीं पाता, है ना? हम भले ही प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लिख रहे हैं, ओके, सॉफ्टवेयर में जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं हमको उस हिसाब से हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम क्या हमारी लैंग्वेज को, इवन हाई लेवल लैंग्वेज को भी समझ नहीं पाता. ओके, इट विल अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है. ओके, तो हम जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले उसको उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, एंड दैट बाइनरी लैंग्वेज इज इन जीरोस एंड वंस, जीरो और वन के फॉर्म में होता है. ओके, जैसे कि हम वन भी अगर लिखना चाहते हैं, हम भले वन लिख रहे हैं लेकिन वो उसको कंप्यूट करके क्या करेगा 001. ओके, 001. ओके, इट्स सी वन इन डेसिमल. ओके, ये वन हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा है, बट योर कंप्यूटर सिस्टम विल डू व्हाट, इट विल कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा. ओके, वन हमने लिखा है लेकिन उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 001. ओके, 001. ओके, 2 लिखा है तो 010, 3 लिखा है तो 011, 4 लिखा है तो 100, 5 लिखा है तो 101, 6 है तो हाउ मच 110, एंड 7 इज नथिंग बट 111. ओके, इस तरीके से हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं. ओके, एक्चुअली बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना वो हमको फर्स्ट पेपर में देखना है ना? हमको फर्स्ट पेपर आपका आपका फर्स्ट पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल है ना? कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है. ओके, जो कि शर्मा सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना? तो उसमें नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. हुआ है क्या टॉपिक ये?
नंबर सिस्टम हाँ सर शुरू है। शुरू है ना। ओके, सो नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग एक नंबर सिस्टम का जो भी होता है नंबर, उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो दैट यू हैव टू सी इन द first paper only. Okay, now I am not going to tell you how to find out the binary equivalent of these numbers. Okay, मैं इसमें आपको बताने वाला नहीं हूँ. Okay, we are just considering that you are well known, you are already no, you are already familiar with these binary number system. Okay, so actually I am focusing on this bitwise operator right now. Okay, so these bitwise operators, as name implies bitwise, that means everything will be applied on the bits. Okay, every action has to take on the bits. उस bitwise operator ने सारे actions किसके ऊपर लेने हैं, bits के ऊपर लेने हैं. Okay, so there are n number of bitwise operators are there. Okay, few of those are binary operator and few of those are unary operator. Okay, so that I'm going to enlist it over here, bitwise operator first, and then we will have a look for each and everything. Okay, bitwise and bitwise or bitwise XOR, left shift, right shift, ones complement. Ones complement. Okay, so these are the different bitwise operators which are supported in C language. Okay, one by one we have to take a look on. First, bitwise AND operator. Okay, as I have earlier told you, the लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ना, लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने देखा है पहले ही, है ना. Okay, so logical AND operator we can represent it with the help of two continuous ampersand sign, है ना. दो continuous ampersand sign से हम लोग logical AND operator को represent करते हैं. Now here bitwise AND operator is represented with the help of single ampersand sign. Okay, single ampersand sign से हम लोग bitwise AND operator को represent करते हैं. सिंगल एम्परसेंड साइन. ओके, सिंगल एम्परसेंड साइन से हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ दिस बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज इट इज अप्लाइड ऑन टू ऑपरेंड्स. ओके, बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर. Okay, it is binary operator because it is applied on two operands. Okay, now as name implies bitwise, that means it is applied on bits only. Okay, जो भी operands है उनमें जो भी value है उन value का जो भी binary equivalent है उसके ऊपर ये bitwise AND operator work करता है. Okay, so as we have seen in the logical AND operator, we have just take one truth table and according to the truth table it will work. Okay, so here is also we have to see the truth table of this bitwise operator. Okay, bitwise AND operator. Okay, like if suppose there are two operands, as we all know binary operator, that is nothing but we have to apply that operator on two operands. Okay, दो operands होने चाहिए वहां पर, कब, जब बाइनरी ऑपरेटर की बात आती है तब, है ना. सो एंड दीज ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ऑन बिट्स, है ना, बिट्स के ऊपर वर्क होते हैं. तो इन ऑपरेंड के पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, इन ऑपरेंड के पॉसिबिलिटीज क्या होंगे. अब बिट्स के ऊपर ये लॉजिकल सॉरी बिटवाइज एंड ऑपरेटर वर्क होना है तो इसके
पॉसिबिलिटीज क्या है, ऑपरेंड 1 के पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या तो फिर उसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। OP1 के पॉसिबिलिटीज 0 एंड 1, है ना। OP1 के पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, या तो OP1 की वैल्यू 0 या तो फिर OP1 की वैल्यू 1। ओके, इन द सेम वे OP2 के भी पॉसिबिलिटीज सेम होंगे, है ना। है ना, इन द सेम वे ऑपरेंड 2 की वैल्यूज भी, ऑपरेंड 2 के पॉसिबिलिटीज भी 0 और 1 हो सकते हैं, है ना, बिकॉज एज वी हैव, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इट इज अप्लाइड ऑन बिट्स, है ना। और बिट्स हमारे या तो 0 1 होंगे, है ना, 0 होगा या तो फिर 1 होगा, 0 होगा या तो फिर 1 होगा। और ऑपरेंड्स हमारे दो है, दोनों ऑपरेंड के पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, ऑब्वियसली 0 1 0 1, है ना, क्योंकि ये ऑपरेटर बिट्स के ऊपर अप्लाई होता है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इन चारों बिट्स के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। एक ऑपरेंड की वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे और दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू फिर 0 and in the next case 1, okay, like this 0 0, it is 0 0, दोनों के कॉम्बिनेशंस हम लोग बना रहे हैं। ओके, वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज, ओके, इनके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। सो 0 0, ओके, दैट इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 0 1, दैट इज 0 1, ओके। उसका रिजल्ट हम आगे में बताएंगे, आगे देखने वाले हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो बिट्स के कॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे। ओके, सो इफ इट इज 0 0 वी हैव कंसीडर्ड, अब कोई कॉम्बिनेशन बनते हैं क्या ये 0 और बाकी के साथ, नहीं, है ना। ऑपरेंड 1 के 0 के साथ ऑपरेंड 2 के जितने भी पॉसिबिलिटीज है उनके साथ हमने कॉम्बिनेशन बना लिए। अब ऑपरेंड 2 का नेक्स्ट बिट उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना, दैट इज 1 0, okay, 1 0, and next is 1 1 1 1। अब और कोई कॉम्बिनेशन बचता है क्या, हाँ, और नहीं ना, अब और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बच रहा है, हमने सबको कवर अप कर लिया। नाउ वी हैव टू सी द रिजल्ट, हाउ दिस बिटवाइज एंड ऑपरेटर विल वर्क। ओके, जैसे कि हमने बोला था लॉजिकल एंड ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू है, तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कंसेप्ट है। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों ऑपरेंड के बिट्स अगर 1 है तभी रिजल्टेंट बिट आपका 1 आएगा। ओके, दोनों ऑपरेंड के बिट्स अगर 1 है तभी आपका रिजल्टेंट बीट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहां पर है, जहां पर दोनों के ऑपरेंड बिट्स, दोनों ऑपरेंड के बिट्स 1 है, लास्ट लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा 1 1, है ना। in this case in this case both bits are 1, so then after only result will be 1, तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, so in this case result is 1 and in rest of the other cases result is 0 because दोनों में या तो 0 है या तो फिर एक में 0 एक में 1, दूसरे में 0 दूसरे में 1, है ना, ऐसा ही है, दोनों में 1, बाकी किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में दोनों में 1 है। और बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों बिट्स, दोनों ऑपरेंड के बिट्स अगर 1 है तभी रिजल्टेंट बिट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज 0। सो पुट 0 इन द रेस्ट ऑफ द अदर केसेस, 0 0 0। इज दैट ओके, इज दैट ओके एवरीवन, समझ में आ गया बिटवाइज एंड ऑपरेटर। आगे में हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो ऑपरेट होता है। ओके, बट फिलहाल ये टेबल आपको समझ में आ गया कि अगर बिट्स, दोनों ऑपरेंड के बिट्स अगर 1 है तो ही रिजल्टेंट बिट आपका 1 आएगा इन केस ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इन केस ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बिट्स अगर 1 है तो ही आपका रिजल्टेंट बिट आपका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ठीक है, ना now bitwise or operator।
bitwise OR operator. Okay. As in case logical OR operator, we can represent it with the help of two continuous vertical bar, है ना. लॉजिकल OR ऑपरेटर को हम दो कंटिन्यूअस वर्टिकल बार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. हियर इन दिस केस बिटवाइज OR ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल वर्टिकल बार. सिंगल वर्टिकल बार से हम लोग बिटवाइज OR ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल वर्टिकल बार. ओके. एंड जैसे कि लॉजिकल OR ऑपरेटर हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, यहाँ पर बिटवाइज OR ऑपरेटर भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर है बिकॉज इट इज अप्लाइड ऑन टू ऑपरेंड्स. ओके. Binary operator. Okay, this bitwise OR operator is binary operator. Okay, because it is applied on two operands. Two operands के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करने वाले. Okay, as name implies bitwise, that means it is also applied on bits. ये भी बिट्स के ऊपर ही वर्क करेगा, ये भी बिट्स के ऊपर ही वर्क करेगा. ओके. और ऑपरेंड बोले दो ऑपरेंड्स है, सो दोनों ऑपरेंड के पॉसिबिलिटीज क्या आएंगे 0 1 0 1. ओके. सो अगेन हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल. OP1 bitwise or OP2. Okay, and as name implies bitwise, it is also applied on bits. Okay. Now operand 1 के possibilities same रहेंगे as in bitwise and it is 0 1, and operand 2 के भी same possibilities 0 and 1. Okay. जैसे ऑपरेंड 1 की पॉसिबिलिटी 0 1 है, वैसे ही ऑपरेंड 2 की भी पॉसिबिलिटी 0 और 1 होंगे और उनके कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर सेम बनेंगे, है ना. जैसे कि बिटवाइज एंड में हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके. 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, fine. Now how this bitwise OR operator will work? Okay, as in logical OR operator, I have told you if both operand value is false, if both conditions are false, then after it will result false, है ना. मैंने लॉजिकल OR ऑपरेटर में क्या बोला था कि दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स है तो ही आपका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा. मीन्स पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. ओके. और फॉल्स के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं. Okay, so here is also in bitwise OR operator, if both operand bits are 0, if both operand bits are 0, then after it will result 0, otherwise 1. दोनों ऑपरेंड के बिट्स 0 है तो ही रिजल्टेंट बिट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा. ओके. सो 0 0 कहां पर मिलेगा आपको, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं आप, है ना. दैट इज ओवर हियर 0 0 0 0 अगर है दोनों ऑपरेंड के बिट्स तो ही आपका रिजल्टेंट बिट क्या आएगा, 0 आएगा. ओके. तो ही आपका रिजल्टेंट बिट 0 आएगा. एंड इन रेस्ट ऑफ द अदर केसेस योर बिट रिजल्टेंट बिट इज 1. योर रिजल्टेंट बिट इज 1. रिजल्टेंट बिट इज 1. व्हाई? एज आई हैव सेज इन द लॉजिकल OR, आप जनरल OR को कंसीडर करो, ये या तो फिर वो, दोनों में से कोई भी एक मिला तो भी चलेगा, दोनों है इट इज गुड. लेकिन दोनों में से कोई भी एक अगर है तो चलता है, लेकिन दोनों अगर नहीं है तो वैसा नहीं चलेगा. इन द सेम वे यहां पर भी दोनों में से कोई भी एक बिट आपका 1 है चलेगा, दोनों 1 है इट इज गुड, लेकिन दोनों में से एक भी बिट अगर 1 नहीं है तो ये नहीं चलेगा. इज इट ओके?
समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? ये आपको ध्यान में रखने के लिए मैं समझा रहा हूं. ओके, आर यू गेटिंग? दोनों बिट अगर जीरो है तो जीरो, अदरवाइज वन. ओके, इन ऑल द केसेस दोनों में से कोई भी एक बिट तो वन है ही, है ना? है ना? इन द सेकंड कॉम्बिनेशन 0 1, सेकंड ऑपरेंड हमारा 1 है इसलिए रिजल्टेंट बिट 1. यहां पर 1 0, फर्स्ट ऑपरेंड हमारा 1 है इसलिए रिजल्ट 1. दोनों ऑपरेंड यहाँ पर 1 है इसलिए 1, लेकिन यहाँ पर दोनों में से एक भी ऑपरेंड 1 नहीं है इसलिए रिजल्टेंट बिट आपका 0 आएगा. ओके, इज दैट ओके? Yes, sir. Okay, now in the next, now we are having new, no, sorry, next operator, that is bitwise XOR. Third one. Bitwise XOR operator. Okay, now this bitwise XOR operator is represented. Bitwise XOR operator is represented with the help of caret sign. caret sign caret sign से हम लोग इसको represent करते हैं. As we have seen this caret sign in the special character, है ना? हमने special character में देखा है, C character सेट में हमने क्या क्या देखा था? डिजिट्स देखे थे, है ना? फिर अल्फाबेट्स दिखे थे और फिर स्पेशल कैरेक्टर देखे थे. ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर में ये सिंबल है, दैट इज कैरेट साइन. ओके, दिस कैरेट साइन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग bitwise XOR ऑपरेटर. ओके, दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर. ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर ही है. बाइनरी ऑपरेटर. सो दिस इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन टू ऑपरेंड्स. ये भी दो ऑपरेंड्स के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे इसको भी. ओके, एज नेम इम्प्लाइज बिटवाइज, सो इट इज ऑल्सो वर्क ऑन बिट्स. ओके, जैसे कि नाम में लिखा है बिटवाइज है, सो ये भी बिट्स के ऊपर ही वर्क करेगा. ओके, और दो ऑपरेंड है, सो दोनों के पॉसिबिलिटीज अभी तक हमने जैसे देखे थे वैसे रहेंगे, 0 1 0 1. ओके, और कॉम्बिनेशंस भी सेम रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so now I am going to write the table directly. Okay, OP1, OP2, OP1 XOR OP2. Okay, now the combinations of these operands are 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, okay, is that fine? Now operand 1 XOR operand 2, how it will operate, ये किस तरीके से वर्क करेगा? Okay, remember this bitwise XOR operator will results only one when both bits are opposite. Okay, when both bits are opposite, then after only it will results 1. Okay, ये बिटवाइज XOR ऑपरेटर रिजल्टेंट बिट 1 कब देगा? जब आपके दोनों बिट्स अपोजिट है. दोनों बिट्स अपोजिट है मींस दोनों ऑपरेंड के बिट्स अपोजिट है, तभी आपको रिजल्टेंट बिट 1 आएगा. अदरवाइज आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं, इफ बोथ बिट्स आर सेम, if both bits are same, then resultant bit is 0. If both bits are same, then resultant bit is 0. तो यहाँ पर दोनों बिट सेम कहां पर है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको और लास्ट कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, दैट इज 0 0 and 1 1. बोथ बिट्स आर सेम, है ना? सो एट दैट टाइम इन दोज केसेस resultant bit is 0. Okay, 0 0.
0 0. Okay, and in both cases in the middle, you can see both bits are opposite, है ना. दोनों ऑपरेंड्स के बीट क्या है, अपोजिट है. एक में 0 है तो दूसरे में 1 है, एक में 1 है तो दूसरे में 0 है ना. इज इट क्लियर. यहाँ पर दोनों बिट्स अपोजिट है, यहाँ पर भी, इस केस में भी और नीचे वाले केस में भी. एक में 0 है तो दूसरे में 1 है, एक में 1 है तो दूसरे में 0 है. ओके, बोथ बिट्स आर अपोजिट, सो दिस XOR will gives 1 as a result if both bits are opposite. अगर दोनों बिट्स अपोजिट है तो XOR ऑपरेटर रिजल्टेंट बिट क्या देता है, 1 देता है. ओके, सो इन बोथ केसेस रिजल्टेंट बिट इज 1. रिजल्टेंट बिट इज 1. समझ में आया XOR? Yes, sir. Okay. Okay. Now next, left shift. Fourth, left shift. Left shift. Now here this left shift operator is also binary operator. Okay, and this left shift is represented with the help of two continuous angular bracket. Left angular bracket, two continuous left angular bracket से हम लोग लेफ्ट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ओके, two continuous left angular bracket. Okay, is that clear? And it is binary. It is binary operator. Okay, now how it will work? Now how can we apply this left shift operator? Okay, as we have said that is binary operator. Okay, so how these operands will work? Okay, वो operands के ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा वो हम देखते हैं. Okay, so left shift we are applying it on two operands like OP1 and OP2. OP1 and OP2. Okay, remember this operand 2 must be the positive integer value. Okay, this operand 2 must be the positive integer value. Okay, positive integer value. Okay, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होना चाहिए ऑपरेंड 2 में. ओके, और ऑपरेंड 1 में हम जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं उस वैल्यू के ऊपर वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करेगा. ओके, आर यू गेटिंग? दिस ऑपरेंड 2 is maybe operand 1 may be value और वेरिएबल. हाँ, ऑपरेंड 2 की जगह पर हम लोग या तो वैल्यू ले सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट वेरिएबल, या तो डायरेक्ट वैल्यू या तो फिर वेरिएबल कंटेनिंग सम वैल्यू. ओके, उनके ऊपर ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमको वर्क करना है. ओके, नाउ हाउ दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर विल वर्क? कैसे वर्क करता है? जैसे कि नाम में लिखा है लेफ्ट शिफ्ट. ओके, लेफ्ट शिफ्ट, तो हमको क्या करना है, बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है. ओके, बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना, दैट मीन्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी बिट्स है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड के बिट्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, मीन्स रिमूव होंगे फ्रॉम दैट ऑपरेंड 1 वैल्यू. ओके, ऑपरेंड 1 में जो भी वैल्यू है उसका जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट है उसमें से लेफ्ट साइड के बिट्स क्या होंगे, रिमूव होंगे फ्रॉम दैट ऑपरेंड 1 वैल्यू. कैसे, वो भी बता रहा हूँ. ओके, ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या बताए थे हमने, इट मस्ट बी द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू. ओके, आइदर इट में बी 1 2 3 एक्सेट्रा. ओके, ऐसे हमको ऑपरेंड 2 की वैल्यू प्रोवाइड करना है. एज इन केस इफ यू हैव टेकन एन एग्जांपल लाइक a left shift 2, a left shift 2. Okay, now we will consider value a, variable a containing some value. Okay, variable a में कोई वैल्यू है, okay, उसके ऊपर हमको ये लेफ्ट शिफ्ट 2 ऑपरेटर अप्लाई करना है. Okay, so if a equal to what,
maybe suppose 2AF. 2AF, okay, 2AF is nothing but a hexadecimal value, है ना. 2AF हमारा hexadecimal equivalent है, hexadecimal value. Okay, now on this particular hexadecimal value, left shift 2 operator will work. Okay, left shift 2 operator we have to apply on 2AF. Okay, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो भी होगा, ओके, जो भी होगा उसके ऊपर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट 2 ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट 2 ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आपने ऑपरेंड 2 की वैल्यू प्रोवाइड की है उतने नंबर ऑफ जीरो बिट्स, उतने जीरो बिट्स राइट हैंड साइड से इंसर्ट होंगे और लेफ्ट हैंड साइड से उतने ही नंबर ऑफ बिट्स रिमूव होंगे, उतने ही नंबर ऑफ बिट्स रिमूव होंगे. ओके, फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ ए. तो सपोज करो कि ए का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1011 0100 0011 1010. Okay, just consider, okay, assume that its binary equivalent is this. Okay, its binary equivalent is like this 1011 0100 0010 1010. Okay, now we have to apply this left shift 2 on this value of a, है ना. ये हमारे a का बाइनरी इक्विवेलेंट है, उसके ऊपर हमको लेफ्ट शिफ्ट 2 ऑपरेटर अप्लाई करना है. ओके, तो कैसे वर्क होगा, इतने नंबर ऑफ जीरो बिट्स, ओके, इतने नंबर के जीरो बिट्स इंसर्ट होंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड. Insert from RHS. Okay, zero bits, this much amount of zero bits insert from right hand side and this much amount of bits removed from left hand side. Okay, इतने ही bits. Okay, same number of bits removed from LHS. लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, जो आपने ऑपरेंड 2 की वैल्यू प्रोवाइड की है उतने नंबर ऑफ बिट्स, उतने नंबर बिट्स क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव होंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरो बिट्स राइट हैंड साइड से इंसर्ट होंगे. ओके, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस ए लेफ्ट शिफ्ट 2. हमको क्या करना है, दो जीरो बिट्स इंसर्ट करने, क्योंकि दो लिखा है हमने यहाँ पर ऑपरेंड 2 की वैल्यू. ओके, सो दो जीरो बिट्स हमको इंसर्ट करने, तो इंसर्ट कर दो. क्या करो, इंसर्ट 0 0, इधर से इंसर्ट करना है हमको. ओके, और इधर से रिमूव करना है. कितने बिट्स, दो बिट्स, तो ये दो बिट्स हट जाएंगे, दो बिट्स हट जाएंगे एंड योर रिजल्ट विल बी लुक लाइक दिस 10 1011 0000 1011. Next. Okay, this will be the result. This will be the result. ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया. Is that clear? Is that clear, everyone? लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है, देखो ध्यान में रखो, लेफ्ट शिफ्ट में 2 मिनट. हाँ सर, एमएससी चा रजिस्ट्रेशनचं 12 तारीख लास्ट डेट होती है सर. बेटा यहाँ पर अपन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, बाकी का हम